Dear student, myself Prakash Garg, Assistant Professor, Department of Geology, Government Pangat PG College, Didwana. Today we are going to discuss on topic classification of minerals. आज हम मिनरल के क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इंट्रोडक्शन। लिथोस्फीयर जो कि अर्थ की सॉलिड लेयर है, जिसमें कई सारे नेचुरल रिसोर्स को होल्ड करके रखा हुआ है, जिसमें एनर्जी रिसोर्स, वाटर रिसोर्स, मिनरल रिसोर्स और कई सारे जैविक रिसोर्स को होल्ड करके रखा हुआ है। एवरेज कई सारी एवरीथिंग जो पृथ्वी पर उपलब्ध है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए आवश्यक है। अर्थ में जो इकोनॉमिक रिसोर्स है, जिसमें कई सारे हजारों मिनरल जगत के हजारों मिनरल सम्मिलित हैं। मिनरल की स्टडी करते समय मिनरल का क्लासिफिकेशन एक बेसिक आवश्यकता रहती है, जिससे कई सारे मिनरल ग्रुपों को एक साथ अलग अलग जो संसार के अलग अलग भागों में पाए जाते हैं। यहाँ पर इस क्लासिफिकेशन की आवश्यकता रहती है, जिससे मिनरल की प्रॉपर्टी की आसानी से अध्ययन किया जा सके। क्रिस्टल अबंडेंस ऑफ मिनरल। अर्थ क्रस्ट पर 8 जो मेजर एलिमेंट है वो उनकी बहुतायत में पाए जाते हैं। जैसे एक नंबर पर है ऑक्सीजन 47%, सिलिकॉन 27%, एल्यूमिनियम 8%, आयरन 5%, कैल्शियम 3.6%, सोडियम 2.8%, पोटेशियम 2.6%, मैग्नीशियम 2% और अदर है लगभग 1%। सिलिकॉन और ऑक्सीजन दो बहुतायत में पाए जाने वाले तत्व जो अर्थ क्रस्ट पर बहुतायत में पाए जाने वाले दो तत्व है। और दूसरे दो एलिमेंट एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, बेरियम, स्ट्रोंशियम है। धातु जैसे कॉपर, तांबा, सीसा, जस्ता, निकल, टीन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। जो प्रकृति में बहुत ही कम प्रोपोर्शन में पाए जाते हैं। द मोस्ट abundant mineral in earth crust are silicate. Non-silicate constitute less than 10% of earth crust. जो मोस्ट अबंडेंट अर्थ क्रस्ट पर जो मोस्ट अबंडेंट मिनरल है वो सिलिकेट्स है।
नॉन सिलिकेट लगभग 10%, लेस देन 10% ऑफ अर्थ क्रस्ट पर जितने सारे, तो उससे 10% से भी कम नॉन सिलिकेट्स है. मोस्ट कॉमन नॉन सिलिकेट्स आर कार्बोनेट, ऑक्साइड, सल्फाइड. These are naturally occurring phosphate, salt, etc. Mineral are naturally formed element compound having definite chemical composition, usually a characteristic crystal form. Mineral are valuable resource for life support activity for human population. Mineral are naturally occurring in organic substance. Every mineral can be identified by the several its physical property or chemical chemistry, crystal chemistry. प्रत्येक खनिज की अपनी एक भौतिक गुण होते हैं और उसकी एक क्रिस्टल की रासायनिक, क्रिस्टल के भौतिक और रासायनिक गुणों से उसको पहचान की जा सकती है. There are nearly 3,700 minerals occurring on Earth, out of which about 2 dozen minerals are common, making up to 90% of mineral constitute in Earth crust. Mineral may be composed by a single element like gold or combination of element. मिनरल एक ही तत्व से बना हो सकता है और कई तत्वों से मिलकर भी बना हो सकता है. मिनरल विच आर composed of more than one element are bounded together by chemical bonding. All mineral formed by more than one element are bound together by positive and negative ions. Minerals are formed from various process and source material. Their growth are controlled by various physiochemical conditions, including mass balance, role of fluids, temperature, pressure, depth or other factor of environment. Classification of minerals. Of all characters of minerals, the chemical constitution is most fundamental. It's naturally take an important position in any rational system of classification. Initially, grouping of mineral has been attempted according to their association in field. प्रकृति में मिनरल जिस एसोसिएशन समुच्चय में पाए जाते हैं उसके आधार पर प्रारंभ में अलग अलग ग्रुपों में विभाजित करने की कोशिश की गई. Then diversity of element are considered. Crystallographer and mineralogist compared salts that have a similar crystalline structure and classified the mineral. An economic classification was brought forward based on their utility point of view. Classification of mineral. Later classification are proposed by arranging the mineral by important fundamental element present in them. Elements are considered in order to Mendeleev periodic table. By this method, ore of any metals are kept together while the same time little violence is done to isomorphous group. Silicate are complex in composition, form a very important rock forming groups. They are the best kept in the division by themselves inside great division in whole range of the silicate is considered
The arrangement adapted in the Dana system of mineralogy was found to be convenient. जो दाना ने मिनरोलॉजी का जो सिस्टम दिया वो कन्वीनियंट लगा. In the field of mineralogy, organization structure created by James Dwight Dana, aptly named as Dana system of mineralogy, is widely accepted classification system for study of mineral. दाना was the first person, तो पहला व्यक्ति था जिन्होंने मिनरल को उसके कंपोजिशन और संरचना के आधार पर मिनरल को वर्गीकृत किया. मिनरल आर फर्स्ट सेपरेटेड classes by NIN. The main classes are elements oxide, halide, sulfide, carbonate, phosphate, silicate. There are the many subclasses still based on composition. Smaller groups are chemically similar with often grouped together. मिनरल को उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर दाना ने क्लासिफाइड किया, जैसे सिलिकेट्स, सल्फाइड्स, कार्बोनेट, ऑक्साइड, हैलाइड, सल्फेट, फॉस्फेट एंड नेटिव एलिमेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट सिलिकेट्स. व्हाट इज सिलिकेट्स? Silicate are compound of silicon and oxygen. सिलिकेट में सिलिका टेट्राहेड्रा के अरेंजमेंट के आधार पर सिलिकेट को 6-7 क्लासेस में डिवाइड किया गया है. 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है. नीजोसिलिकेट, सोरोसिलिकेट, साइक्लोसिलिकेट, इनोसिलिकेट, पाइलोसिलिकेट एंड टेक्टोसिलिकेट. वन बाय वन वी डिस्कस नीजोसिलिकेट. नीजोसिलिकेट आर आल्सो कॉल्ड आइलैंड सिलिकेट. नीजोसिलिकेट में ए सिंगल सिलिका टेट्राहेड्रा रहता है. यहाँ सेंटर में सिलिकॉन रहता है और यहाँ 3 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन यहाँ बैक साइड में रहता है. तो इस संरचना को सिलिका टेट्राहेड्रा बोलते हैं. सिलिका टेट्राहेड्रा. सिलिका टेट्राहेड्रा के अरेंजमेंट के आधार पर सिलिकेट को 6 अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया है. नीजोसिलिकेट में सिंगल सिलिका टेट्राहेड्रा रहता है. सिंगल सिलिका टेट्राहेड्रा जिसमें SiO4 होल -4. इस -4 को न्यूट्रलाइज करने के लिए मेटल्स के साथ मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है. नीजोसिलिकेट के जो एग्जाम्पल है ओलिविन, नीजोसिलिकेट के एग्जाम्पल है ओलिविन, जिसमें
निजो सिलिकेट में एक ऑक्सीजन एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से घिरा रहता है और इसमें ऑक्सीजन की शेयरिंग नहीं होती है। एक भी ऑक्सीजन दूसरे एक ही सिलिका टेट्राहेड्रा होता है, इसलिए इसमें ऑक्सीजन की शेयरिंग नहीं होती है। निजो सिलिकेट के एग्जाम्पल है ओलिविन, गार्नेट, ओलिविन ग्रुप जिसका फॉर्मूला होता है MgFeSiO4। फॉर्मूले से पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा सिलिकेट है। इसमें सिलिकन SiO4 है। सिलिकन ऑक्सीजन का जो रेशियो है 1:4। ये निजो सिलिकेट्स का करेक्टरिस्टिक्स है। Other example of nijo silicate are garnet groups, garnet, aluminium, olivine group, garnet group, zircon group, Al2SiO5 group, ओमाइट ग्रुप, ये सारे ग्रुप निजो सिलिकेट में आते हैं। सोरोसिलिकेट में दो सिलिका टेट्राहेड्रा आपस में एक ऑक्सीजन से जुड़े रहते हैं। इसमें एक ऑक्सीजन जो सेंटर में है उसकी शेयरिंग होती है, एक ऑक्सीजन शेयरिंग होती है। इसमें सिलिकन ऑक्सीजन का जो रेशियो है इसमें काउंट कर सकते हैं हम लोग। सिलिकन ऑक्सीजन का रेशियो, सिलिकन में ये सिंगल एक सिलिका टेट्राहेड्रा है, इसमें सिलिकेट कितना हो गए, एक सिलिकन ये हो गया, दूसरा ये हो गया। सिलिकॉन आपके हो गए 2 और ऑक्सीजन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7 ऑक्सीजन, 1:7। और सिलिकन ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है सोरोसिलिकेट में 2:7 होता है। सोरोसिलिकेट का दूसरा नाम है पेयर्ड सिलिकेट्स। पेयर्ड, इसका जो एग्जाम्पल है एपिडोट में सोरोसिलिकेट्स होता है। हेमीमॉर्फाइट, एपिडोट सोरोसिलिकेट के एग्जाम्पल्स है। सोरोसिलिकेट को डबल आइलैंड सिलिकेट भी कहते हैं। सिंगल आइलैंड सिलिकेट तो निजो सिलिकेट को कहते हैं, इसको डबल आइलैंड सिलिकेट कहते हैं। साइक्लोसिलिकेट जैसा साइक्लो मीन्स होता है रिंग, जैसा कि नाम से ही पता लगता है कि साइक्लो, इसमें जो सिलिका टेट्राहेड्रा जो आपस में मिल करके एक रिंग बनाते हैं। इसमें जो सिलिका टेट्राहेड्रा है वो एक रिंग के रूप में अरेंज रहते हैं, इसलिए इसको साइक्लोसिलिकेट कहते हैं। Cyclosilicate is also called ring silicate. Silicate tetrahedra joined in a ring. Beryl, साइक्लोसिलिकेट के एग्जाम्पल है बेरिल, एमरल्ड, जो रिंग सिलिकेट में क्रिस्टलाइज होते हैं। जो साइक्लोसिलिकेट में जो सिलिकन ऑक्सीजन का जो रेशियो है 1:3 है। इसमें देख भी सकते हैं कितने ऑक्सीजन हो गए। इसमें 3 सिलिकॉन है और 3
तीन सिलिकॉन हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसको सरल करेंगे तो आ जाएगा 1:3। ये सिलिका साइक्लोसिलिकेट, इसमें 2 ऑक्सीजन से 2 इसमें आप देखो, एक सिलिका टेट्राहेड्रा 2 ऑक्सीजन शेयर कर रहा है। 2 ऑक्सीजन की शेयरिंग हो रही है। यहाँ पे देखो, इसमें ये 3 टेट्राहेड्रा रिंग सिलिकेट है, ये 6 टेट्राहेड्रा रिंग सिलिकेट्स है। 3 मेंबर साइक्लोसिलिकेट और 6 मेंबर साइक्लोसिलिकेट्स। इसमें भी आप देखो, एक ये यहाँ पे ऑक्सीजन शेयर हो रहा है, एक ये ऑक्सीजन शेयरिंग हो रही है। 2 ऑक्सीजन शेयर हो रहे हैं आपस में। और ये एक जो सिलिका टेट्राहेड्रा है वो आपस में एक रिंग में अरेंज रहते हैं। बेरिल एमरल्ड इसके एग्जाम्पल है। अब आता है इनोसिलिकेट्स। इनोसिलिकेट्स, आइनोसिलिकेट, आइनो मीन्स होता है चेन सिलिकेट, चेन सिलिकेट। इसमें क्या होता है, जो सिलिका टेट्राहेड्रा है वो आपस में एक चेन से जुड़े रहते हैं। इसको आप देखिए, इसमें ये सिलिका टेट्राहेड्रा आपस में एक जुड़ कर के एक चेन बना रहे हैं। इसमें हम देखें तो इसमें 2 ऑक्सीजन शेयर हो रहे हैं। इसके कोई भी आप सिलिका टेट्राहेड्रा ले सकते हैं, जिसमें से ये एक, प्रत्येक सिलिका टेट्राहेड्रा से 2 ऑक्सीजन शेयर हो रहे हैं। इनोसिलिकेट को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, दो टाइप में डिवाइड कर रखा होता है, सिंगल चेन सिलिकेट और डबल चेन सिलिकेट। डिफरेंस क्या है दोनों में? सिंगल चेन सिलिकेट में एक ही चेन है, और डबल चेन सिलिकेट में एक ऊपर वाली चेन है और एक ये दूसरी चेन। सिंगल चेन सिलिकेट और डबल चेन, एक ये चेन होगी और दूसरी ये होगी डबल चेन सिलिकेट। सिंगल चेन सिलिकेट का जो एग्जाम्पल है वो आपका है पायरोक्सिन में सिंगल चेन सिलिकेट्स होता है। और जो डबल चेन सिलिकेट है वो आपका होता है एम्फीबॉल में, एम्फीबॉल। इसमें सिलिकॉन ऑक्सीजन की रेशियो की बात करें, सिंगल चेन में सिलिकॉन ऑक्सीजन की रेशियो की अगर बात करें तो इसमें सिलिकॉन कितना है? सिलिकॉन इनोसिलिकेट में आप है ना सेंटर वाला कोई भी ले सकते हैं, जैसे इसकी, ठीक है। सिलिकॉन कितना हो गया? 1 हो गया। और ऑक्सीजन कितने हो गए? 1 2 3 और 4। इसमें जो सिलिकॉन ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो रहता है 1:3।
सिंगल चेन में। डबल चेन सिलिकेट में आप जो सिलिकॉन ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो रेशियो रहता है 4:11। इसमें दो ऑक्सीजन, सिंगल चेन में दो ऑक्सीजन शेयरिंग होती है, दो ऑक्सीजन शेयरिंग होंगे। और इसमें हाफ ऑफ चेन, इसमें आप देखिए ये सिलिका टेट्राहेड्रा दो ऑक्सीजन शेयर कर रहा है, ये वाला, ठीक है। और ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये जो बीच में है आपके, ये वाला, इसमें आप देखिए तीनों ही ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन शेयरिंग हो रही है। एक यहाँ पे हो रहा है, एक यहाँ हो रहा है और एक यहाँ हो रहा है। 3 ऑक्सीजन शेयरिंग हो रही है। तो आधे चेन में आपको आधे जो दो ऑक्सीजन शेयर कर रहे हैं और आधे सिलिका टेट्राहेड्रा 3 ऑक्सीजन शेयर कर रहे हैं। फाइलोसिलिकेट, फाइलो मीन्स होता है लीफ। फाइलो मीन्स होता है, फाइलो मीन्स लीफ। जो सीड शेप में, सीड के फॉर्म में अरेंज रहती है। फाइलोसिलिकेट के आपके एग्जाम्पल हैं बुक माइका, मस्कोवाइट, बायोटाइट, ये फाइलोसिलिकेट के एग्जाम्पल है। फाइलोसिलिकेट्स आप देखिए, इसमें जो सिलिकॉन ऑक्सीजन का रेशियो है, फाइलोसिलिकेट में जो सिलिकॉन ऑक्सीजन का रेशियो है वो रहता है आपका 1:2:5, 2:5। सिलिकॉन जो ऑक्सीजन का जो रेशियो है, इसमें आप इसमें जो शेयर नहीं हो रहे हैं उनको काउंट करना है आपको। तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 1 2, ये सिलिकॉन हो गए 1 और 2। फिर आपने को सिलिकॉन, ये ऑक्सीजन काउंट करोगे, 1 ये हो गया, 2 3 3 1 3 और ये 5, 2:5 है इसमें। इसके अंदर आपको 3 ऑक्सीजन शेयर हो रहे हैं यहाँ। प्रत्येक सिलिका टेट्राहेड्रा 3 ऑक्सीजन शेयर करता है। Tectosilicate is also called a framework silicate. टेक्टोसिलिकेट में जो सिलिकॉन ऑक्सीजन का रेशियो है 1:2 है रेशियो है। और इसमें सिलिका टेट्राहेड्रा के जो चारों ऑक्सीजन हैं, 4 ऑक्सीजन कौन कौन से, 3 तो अपने को यहाँ सामने से दिखते हैं। जैसे एक सिलिका टेट्राहेड्रा की बात करें, एक ऑक्सीजन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा यहाँ सेंटर में है, बैक साइड में, ठीक है। इसमें चारों ऑक्सीजन शेयर रहते हैं। कैसे, ये देखो सेंटर में वापस ऊपर सिलिका टेट्राहेड्रा से जुड़ गया
तो 4 ऑक्सीजन शेयरिंग रहते हैं इसमें। और सिलिकॉन ऑक्सीजन का जो रेशियो है 1:2, सिलिकॉन ऑक्सीजन का जो रेशियो है। टेक्टोसिलिकेट के एग्जाम्पल है क्वार्ट्ज, SiO2, फेल्सपार, फेल्सपेथोइड, एक्सेट्रा। सल्फाइड 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 ग्रुप सल्फाइड ग्रुप सल्फाइड ग्रुप जिसमें NiSiS-2 एनाइन होता है। इसके सल्फाइड के अंदर कई सारे मिनरल पायराइट, FeS2, गैलेना, PbS, स्फिलराइट, ZnS जैसे कई सारे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के मिनरल इस ग्रुप में आते हैं। सल्फाइड मिनरल एज द सोर्स ऑफ मेटल जैसे जिंक, लेड, कॉपर, टीन आदि में काम आते हैं। सल्फाइड के अंदर आपके आर्सेनाइड, टेलुराइड और सल्फोसाल्ट, इनको भी सम्मिलित किया गया है। सल्फोसाल्ट, सल्फाइड जिसमें Si2 - एनाइन होता है। इस सल्फाइड के साथ आर्सेनाइड, टेलुराइड, सल्फा आर्सेनाइड, सल्फर सेनाइड आदि सबको सम्मिलित किया गया है। सल्फाइड में कई सारे धातुओं के धात्विक और जैसे चाल्कोसाइड, CO2S, गैलेना, PbS, स्फिलराइट, ZnS, पिरोटाइट, Fe12XS, पेंटेलेराइट, सिनेबार, SCS, कोवेलाइट, CUS, रियल जार, ASS, ऑरिपमेंट, स्टिपनाइट, पायराइट, मार्केसाइट, FeS2, मोलिब्डेनाइट, चाल्कोपायराइट, Fe, CuFeS2, बोर्नाइट, CU5, FeS4, सल्फा आर्सेनाइड, आर्सेनोपायराइट, FeASS, कोबाल्टाइट, COFeASS, आर्सेनाइड, निकेलाइन, NiS, टेलुराइड, कैल्वेराइट, T2, सेल्वेनाइट, Ag, Tu2 आदि सभी को सम्मिलित किया गया है। कार्बोनेट जिसमें कार्बोनेट ग्रुप में एनाइन जो CO3 2- कार्बोनेट होता है। इसके अंदर कैल्साइट, डोलोमाइट, कई सारे कार्बोनेट मिनरल सम्मिलित किए गए हैं। इसके कार्बोनेट मिनरल को एसिड टेस्ट से इसका आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है। लाइमस्टोन जो
डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इफरवेंस फिजिंग इफरवेंस देता है। कार्बोनेट को कई सारे ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं। कैल्साइट ग्रुप, डोलोमाइट ग्रुप, अरेगोनाइट ग्रुप, कैल्साइट ग्रुप, डोलोमाइट ग्रुप, अरेगोनाइट ग्रुप और OH बियरिंग ग्रुप। इसके अंदर कैल्साइट ग्रुप के अंदर जो कैल्साइट ग्रुप है उसमें COCO3, कैल्साइट मैग्नेसाइट MgCO3, मैग्नेसाइट सिडेराइट FeCO3, सिडेराइट रोडोक्रोसाइट MnCO3 जो हेक्सागोनल क्रिस्टल ग्रुप में क्रिस्टलाइज होते हैं, हेक्सागोनल या रोम्बाहेड्रल ग्रुप में क्रिस्टलाइज होते हैं। डोलोमाइट डबल कार्बोनेट है जो कैल्शियम और मैग्नीशियम का डबल कार्बोनेट है, जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3 और MgCO3। डोलोमाइट ग्रुप के अंदर डोलोमाइट, एकेराइट, कुथोराइट, अरेगोनाइट ग्रुप। अरेगोनाइट जो कार्बोनेट का ऑर्थोरम्बिक ग्रुप क्रिस्टल सिस्टम में क्रिस्टलाइज होता है। अरेगोनाइट और कैल्साइट का जो केमिकल फॉर्मूला है वो सेम है, दोनों के केमिकल फॉर्मूला CaCO3 है, लेकिन इसका डिफरेंस कैल्साइट का जो रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम में क्रिस्टलाइज होता है कैल्साइट, और अरेगोनाइट रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम में क्रिस्टलाइज होता है। OH बियरिंग ग्रुप, अरेगोनाइट ग्रुप के अंदर अरेगोनाइट, विथेराइट BaCO3, स्ट्रोंसियनाइट SrCO3, सेरोसाइट PbCO3। OH बियरिंग ग्रुप के अंदर कार्बोनेट के कॉपर कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड, एजुराइट और मेलेकाइट, दोनों ही अपने कलर से पहचाने जाते हैं। एजुराइट ब्लू और मेलेकाइट ग्रीन कलर के कॉपर के और मिनरल है। ऑक्साइड के मिनरल्स जिसमें NiNO2- होता है। O2- इसमें कई सारे मेटल धातुओं के ऑक्साइड जैसे आयरन, कॉपर, जिंक, टाइटेनियम, टीन, मैग्नीज, यूरेनियम, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, बेरिलियम, कई सारे धातुओं के ऑक्साइड सम्मिलित है। ऑक्साइड मिनरल को उनके फॉर्मूले के आधार पर अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर रखा है, जिसे X2O ग्रुप, X2O ग्रुप में X जो मेटल से X मेटल है, और X2O में क्यूप्राइट हो गया, Cu2O, आइस, H2O। XO ग्रुप में आपका आ जाएगा MgO, पेरिक्लिस एंड जिंकाइट ZnO। दूसरा एक और ग्रुप है XY2O3। इसके अंदर आपका मैग्नेटाइट,
मैग्नेटाइट जिसका फॉर्मूला होता है Fe3O4। मैग्नेटाइट आयरन का सबसे अच्छा ओर है। क्रोमाइट FeCr2O3। स्पाइनल MgAl2O4। फिर आपका आता है X2O3। X2O3 के अंदर आपका हेमेटाइट आता है जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। कोरेंडम Al2O3। इलेमनाइट FeTiO3। फिर आपका दूसरे ऑक्सीजन का तीसरा ग्रुप है XO2। इसमें रूटाइल, कैसिटराइट, पायरोलुसाइट और इरेनाइट। रूटाइल जो टाइटेनियम का ओर है, कैसिटराइट टीन का ओर है, पायरोलुसाइट मैग्नीज का ऑक्साइड है और यूरेनिनाइट यूरेनियम का ऑक्साइड है। हैलाइड मिनरल का वो ग्रुप है जिसमें हेलोजन, जो एनाइन है वो हेलोजन है। एनाइन में आप इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइट इनकी वैलेंसी -1 होती है। इन पे जो चार्ज होता है वो -1 होता है। हैलाइड का जो सिंपल एग्जांपल है वो NaCl है, जो कॉमन साल्ट, जो बेकिंग साल्ट है, जो खाने का जो नमक है। साल्वाइट KCl, फ्लोराइट CaF2। ये भी हैलाइड के एग्जाम्पल है। सल्फेट के अंदर जो एनाइन ग्रुप है SO4 2- से SO4 2-। इसके एग्जाम्पल है आपके एनहाइड्राइड जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4, जो कैल्शियम का सल्फेट है। आपको पता हो तो जो जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। ये एनहाइड्राइड इसका जिप्सम से जब हाइड्रोजन का वाटर को रिलीज़ कर दिया जाए तो एनहाइड्रेट बन जाता है। और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको पता हो तो उसमें जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। बेराइट BaSO4, सेलेसाइट SrSO4, एग्लेसाइट PbSO4, एनहाइड्रेट CaSO4, एक्सेसाइट, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रस सल्फेट जैसे हाइड्रस सल्फेट जिप्सम में हाइड्रस का मतलब इसके अंदर वाटर आ गया, ठीक है। जिप्सम, किसेराइट, स्टारकेट, हेक्साहाइड्राइट, इप्सोमाइट, मेरिडियनाइट इसके एग्जाम्पल्स है। फॉस्फेट के अंदर जो कॉमन एनायन है वो है PO4 -3 एनायन है। इसके अंदर फ्लोरोएपेटाइट जिसका फॉर्मूला होता है CA5PO4 ऑल थ्राइज FOH। फ्लोरोएपेटाइट जो आपके दांतों का एक मिनरल है, फॉस्फेट मिनरल है।
धातुओं का एक फॉस्फेट मिनरल्स है। फॉस्फेट के अदर दूसरे एग्जाम्पल एपाटाइट, मोंजाइट जो होता है आपका सीरियम, लैंथेनम, थोरियम का फॉस्फेट होता है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। जो मोंजाइट इंडिया में जो कोस्टल एरिया है, जो बीच एरिया है, केरला तमिलनाडु का जो बीच है, वहाँ पे ये मोनाजाइट बीच प्लेसर के रूप में मिलता है। नेटिव एलिमेंट वो एलिमेंट है जो स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, किसी अन्य मिनरल से बॉन्ड नहीं बनाते हैं और स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। इनको नेटिव एलिमेंट कहते हैं। नेटिव एलिमेंट को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला ग्रुप है आपका मेटल में 3 ग्रुप है। गोल्ड ग्रुप, जिसमें कॉपर, गोल्ड और सिल्वर को सम्मिलित किया गया है। दूसरा ग्रुप है प्लेटिनम ग्रुप। प्लेटिनम ग्रुप में पैलेडियम, प्लेटिनम और प्लेटिनम और इरिडियम को सम्मिलित किया गया है। आयरन ग्रुप में आयरन, कैमाकाइट जिसमें आयरन और निकल, और टैनाइट जिसमें निकल और को सम्मिलित किया गया है। फिर आपका आता है मेटल्स में कई सारे गुण होते हैं, जैसे सॉफ्ट होती है, मेलिएबल जिससे हथौड़े के प्रहार से चदरे बना सकते हैं, सेक्टाइल जिसको काटा जा सकता है, और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो धातुएं हैं वो लाइट की, विद्युत की और ताप के सुचालक होते हैं। एंड ओपेक जिसमें लाइट की ट्रांसमिशन नहीं होता है। दूसरा ग्रुप है नेटिव एलिमेंट का सेमी मेटल्स का मतलब होता है अर्ध धातुएं में आपके 3 मिनरल्स आते हैं, एलिमेंट आते हैं, आर्सेनिक, बिस्मिथ और एंटीमनी। तीसरा जो ग्रुप है उसमें आपके नॉन मेटल्स में वो आते हैं अधातुएं, जिसमें ग्रेफाइट, डायमंड और सल्फर को सम्मिलित किया गया है।